ہم نے سبق چوک میں لگی بتیاں کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوال کریں گے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال الف، سرخ بتی جلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ سوچیں اور مجھے بتائیں کہ جب سرخ بتی جلتی ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے۔ تو ہم جواب میں کیا لکھ سکتے ہیں کہ سرخ بتی جلنے کا مطلب ہے رک جائیں۔ تو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سرخ، آپ بھی لکھیے اپنی کتاب پر، سین، رے، سین کے اوپر پیش، پھر لکھنا ہے خے، سرخ۔ خے ہم دوبارہ لکھیں گے۔ اگر آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو مٹا کر دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ سرخ، پھر لکھیں گے بتی، بے، تے اور چھوٹی اے، نقطے ڈالیں، بے، تے کے نقطے، بے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر ہے شد کی علامت۔ سرخ بتی، آگے لکھیں گے جلنے، جیم، لام، نون اور بڑی اے، جلنے، کاف الف کا، مطلب، میم، توئے، پھر لکھیں گے لام اور بے، مطلب ہے اور بڑی یہ۔ سرخ بتی جلنے کا مطلب ہے کاف ہے کے، پھر لکھیں گے رک، رے، کاف، رک جائیں، جیم الف جا، حمزہ یہ اور نون غنہ، رک جائیں۔ آپ بھی اپنی کتاب پر یہ جملہ لکھ لیجئے اور جملے کے آخر میں خاتمہ لگائیں گے۔ سوال بے، سبز بتی کے جلنے پر کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ مجھے سوچ کر بتائیں کہ جب سبز بتی جلتی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلنا چاہیے، بالکل صحیح۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے سبز بتی جلنے پر چلنا چاہیے۔ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سین، بے، زے، سبز، سین کے اوپر زبر ڈالیں گے، پھر لکھیں گے بتی، بے، تے اور چھوٹی یہ، نقطے ڈالیں گے، بے کا نقطہ، تے کے 2 نقطے، بے کے اوپر زبر اور تے کے اوپر شد، پھر لکھیں گے جلنے، جیم، لام، نون اور بڑی یہ، جلنے پر، پیرے پر، چلنا، چے، لام، نون اور الف، چلنا چاہیے، چی الف چا، پھر لکھیں گے ہے، یہ اور بڑی یہ، ہے کا ہوک، یہ کے نقطے اور آخر میں خاتمہ کی علامت لگائیں گے۔ سبز بتی جلنے پر چلنا چاہیے۔ سوال جیم، ٹریفک کے اشاروں کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ ٹریفک کے اشاروں کی پابندی ہمیں کیوں کرنی چاہیے؟ تاکہ ہم حادثوں سے بچ سکیں، بالکل صحیح۔ تو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تاکہ، تے الف تا، کاف ہے کے، تاکہ، ہے میم ہم، آپ بھی لکھیے اپنی کتاب پر، ہے میم ہم، حادثوں، ہے الف ہا، دال کے نیچے زیر لگائیں گے، پھر سے، واو اور آخر میں نون غنہ، حادثوں، سین بڑی ہے سے، بے چے بچ، نقطے ڈالیں گے، بچ اور آخر میں لکھیں گے سکیں، سین، کاف، یہ اور نون غنہ اور آخر میں خاتمہ کی علامت، تاکہ ہم حادثوں سے بچ سکیں۔ آپ بھی اپنی کتاب پر یہ جملے لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ تو یہاں 3 تصویریں ہیں۔
पहली तस्वीर के नीचे लिखा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, पैदल गुजरने की जगह। ये ऐसा निशान है, जहाँ पे ये निशान लगा होता है उसका मतलब होता है कि ये जगह पैदल चलने वालों के लिए है। फिर दूसरी तस्वीर देखिए, तस्वीर में ये एक जगह ऐसे उभरी हुई ऊपर की तरफ है, इसे कहते हैं स्पीड ब्रेकर, और यहाँ हमने रफ्तार आहिस्ता करनी होती है। और तीसरी तस्वीर के नीचे लिखा है हॉर्न बजाना मना है। हॉर्न बना है और उसके ऊपर एक लाइन लगी है, उसको काटा हुआ है, यानी यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है। अब पहला सवाल देखते हैं क्या है, सड़क पर ये निशानात क्यों लगाए जाते हैं? तो बताइए। चलें मैं आपको बताती हूँ। सड़क पे ये जो इस तरह के निशान और कुछ और भी निशान होते हैं, वो इसलिए लगाए जाते हैं कि लोगों की मदद हो सके। जब ये निशान नहीं होंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए ये लोगों की मदद के लिए, उनकी आसानी के लिए निशानात लगे होते हैं सड़क पर। दूसरा सवाल है, स्कूल और अस्पताल के बाहर हॉर्न बजाना क्यों मना होता है? इसलिए मना होता है कि स्कूल में बैठे तालिब इल्म और अस्पताल में मरीज तंग ना हो। हॉर्न बजेगा तो वहाँ के लोग परेशान हो जाएंगे। अब तीसरा सवाल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का क्या इस्तेमाल है? तो ऊपर जो तस्वीर है नीचे लिखा था पैदल गुजरने की जगह, तो ऐसी जगह जहाँ से पैदल लोग आ जा सकें सड़क पर, उसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और आखिरी सवाल है, अगर स्पीड ब्रेकर पर सवारियों की रफ्तार कम ना की जाए तो क्या होगा? सवारियां यानी गाड़ियां। तो गाड़ियों की रफ्तार अगर हम आहिस्ता नहीं करते तो फिर क्या होगा? हादसा हो जाएगा, रफ्तार तेज़ होगी, गाड़ी उछलेगी और गाड़ी कहीं किसी दीवार में या किसी खंभे में भी लग सकती है। तो इसलिए जब स्पीड ब्रेकर आता है तो पहले ही गाड़ी की रफ्तार को आहिस्ता कर लेना चाहिए। सवाल नंबर 6, इशारों की मदद से हुरूफ लिखें और अल्फाज मुकम्मल करें। तो यहाँ कुछ लफ्ज़ हैं डब्बों में लिखे, माफ़ कीजिएगा, कुछ हर्फ डब्बों में लिखे हुए हैं और उन हर्फ को देखकर हमने पूरा लफ्ज़ बनाना है, मुकम्मल करना है। कुछ हर्फ की जगह यहाँ खाली भी है। तो पहला देखें, लिखने के काम आती है। कौन सी चीज़ है जो लिखने के काम आती है? और यहाँ नंबर 1 है पे, नून और एक खाली जगह, फिर लाम। यहाँ हम कौन सा हर्फ लगाएं तो एक लफ्ज़ बन जाए जो लिखने के काम आए? पेंसिल, एक चीज़ है पेंसिल, तो यहाँ पे, नून और सीन लिख दें, सीन के बाद लाम, लफ्ज़ बन जाएगा पेंसिल। तो इस खाली डब्बे में हम लिख देंगे सीन, तो लफ्ज़ क्या बन गया? पेंसिल। पे, नून, सीन और लाम, पेंसिल। आप भी अपनी किताब पर लफ्ज़ लिख लीजिए पेंसिल। अब दूसरा है जिस्म का हिस्सा है, और यहाँ 2 नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर कहाँ है? सीन, रे, अलिफ। तो सीन तो हमने पहले ही लिख लिया, अब इन्हें मिलाएं सारे हर्फ को। सीन, रे, सर, बिल्कुल सही। अगले वाले को हम साथ नहीं मिलाएंगे। जिस्म का हिस्सा है ना हमारा सर। फिर है एक फल है। अब तीसरा वाला देखते हैं क्या है? अलिफ, नून, आगे हमने एक लफ्ज़ लिखना है, फिर है वाओ, रे। अगर इस खाली जगह में मैं गाफ लिख दूं तो फिर क्या लफ्ज़ बन जाएगा? अंगूर बन जाएगा। अलिफ, नून, गाफ, वाओ, रे, अंगूर। तो यहाँ तीसरी चीज़ है एक फल, अंगूर। सवाल, माफ़ कीजिएगा, अगला जुमला है चौथा, एक सवारी है। अब चौथी वाली क्या चीज़ है? गाव, अलिफ, रे, छोटी, ये तो गाव तो पहले से लिखा था, क्या लफ्ज़ बन जाएगा? गाड़ी है, बिल्कुल सही। गाफ अलिफ गा, रे छोटी है री, गाड़ी, लफ्ज़ बन गया गाड़ी। पांचवा है इससे हवा मिलती है। तो पांचवी वाली चीज़ देखते हैं, पांचवें में कौन कौन से हर्फ हैं? पे, नून, खाली जगह है और फिर अलिफ। तो यहाँ अगर खे लगा दिया जाए
तो फिर क्या लफ्ज़ बन जाएगा? अगर मैं यहाँ पे खे लिख देती हूँ, पंखा, बिल्कुल सही। पंखे से हमें हवा मिलती है। पे, नून, खे और अलिफ, पंखा, नुक्ते डाल देंगे। अब छठा वाला जुमला देखते हैं। सफाई के काम आता है। और छठे में पहला हर्फ नहीं लिखा, फिर है अलिफ, रे और वाव। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? झे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो लफ्ज़ क्या बन जाएगा? झाड़ू। झाड़ू सफाई के काम आता है ना, तो हम यहाँ झाड़ू का लफ्ज़ लिख लेते हैं। आप भी अपनी किताब पर लफ्ज़ लिख लीजिए, झाड़ू। अब आखिरी रह गया है, इस पर लिखते हैं। किस पर लिखते हैं? काफ, अलिफ, गैन, जाल लिख देंगे यहाँ पे। लफ्ज़ बन जाएगा कागज़। काफ अलिफ का, गैन और जाल, कागज़। अब आप इस सवाल को अपनी किताब पर मुकम्मल कर लीजिए। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ लिखने और पढ़ने की कोशिश करनी है।